the purpose of today's session is to give you orientation about political science. है ना? Have you gone through the syllabus of PSIR? और कितने लोग हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है? हाँ, कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, ठीक है, चलो ग्रेट. इन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, मतलब टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे. ओके, कम है. First of all, having background in the subject, it's not very big advantage. It gives you a platform जहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, to start with. But as you clearly know that what we study in universities and the way we study exactly cannot be replicated in UPSC exam. यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते हैं तो पहली बात है कि हमारे पास जो आंसर लिखते हैं, हमारे पास बहुत टाइम रहता है, पेस भी ठीक ठाक रहता है, एंड यू जस्ट फोकस ऑन फिलिंग द पेजेस. बट व्हेन यू विल राइट आंसर्स इन पॉलिटिकल साइंस हियर, आपके पास लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड स्पेस रहेगा. इनफैक्ट वन वर्ड दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इन दिस प्रिपरेशन इज टाइम. एवरीथिंग इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दिस. इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर आया, इट वॉज डिफिकल्ट. वन फैक्टर वॉज टाइम. यदि वो 2 घंटे की जगह 4 घंटे में आपको करना होता तो शायद आप कर लेते बाय मेकिंग सम काइंड ऑफ रीजनिंग एंड कंक्लूजन. बट सिंस वो 2 घंटे में करना है, एंड दैट्स व्हाई इट वॉज डिफिकल्ट, राइट? सो टाइम इज वन फैक्टर विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड दैट्स व्हाई वी कैनॉट अफोर्ड टू बी आइडियलिस्ट इन दिस प्रिपरेशन. हर चीज को एकदम आप परफेक्शनिज्म के साथ पढ़ेंगे, कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होगी. यू हैव टू रीड जनरल स्टडीज 4 पेपर्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के सब कुछ ही पढ़ना है. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ पढ़ना है, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम. यदि मैं आपके लिए एक टाइमलाइन ड्रॉ करूं, करेंटली वी आर mid of June towards end of June, and you are targeting the mains of 2027 जो कि होने वाला है आपका अगस्त मंथ में. This is your target. Before that you will be giving your prelims paper जो कि होगा in the month of May 2027. Now, in between prelims and mains, you get somewhere around 75 days of time, which is just not enough. वो बिल्कुल ही कुछ नहीं है. अब इस बार talk to those who are doing the writing the mains this year. 24 मई को prelims हुआ और 24 तारीख आने वाला है. ये लास्ट मंथ कैसे बीता है उनको भी नहीं पता. कट ऑफ डिस्कस करते करते ही बीत जाता है. कट ऑफ आंसर कीज, प्रीलिम स्टफ था, ये वो सारी चीजें. 1 month has been finished. So 75 days between prelims and mains, it is not enough, because in 75 days you'll have to prepare for 7 papers. That is effectively 10 days you get for one paper. Now if you have seen the paper syllabus of political science, we have to study total of 40 topics in PSIR, out of which 20 topics are in paper 1 and 20 topics are in paper 2. So यदि आपको 10 दिन मिल रहा है एक पेपर फिनिश करने के लिए, so you are getting only half day to prepare for one particular topic. That's it. उससे ज़्यादा नहीं. So that's why don't count on these 75 days कि आपके कैलकुलेशन में ये नहीं होना चाहिए. Now before that, it will be roughly from the first week of Feb that you will completely prepare for the prelims exam. Completely focus उस पे हो जाएंगे. अभी तो मेंस ही फोकस्ड हमारी पढ़ाई होगी, but from Feb first week you will be into complete preparation of prelims. And today we are in mid of June. Now this entire timeline जो आपके पास है 7 months
रफली अपने पास है. This you have to use for consolidating your mains preparation. Mains preparation. Now, you must be aware about the pattern of the exam. टोटल कितने मार्क्स का ये एग्जाम है? कितने मार्क्स का टोटल है? 2025 का. Out of this 2025, 1750 is coming from mains and 275 is coming from the interview. And there's another stage, that is the prelim stage, which is not contributing anything to your marks tally. Prelims is just an examination which is picking you from a very dissolved competition. मतलब prelims में जो 5 लाख लोग बैठ रहे हैं, not all of them are equally oriented towards UPSC. कुछ लोग ऐसे भी तैयारी कर रहे हैं. But the 15,000 who are going to write mains, they all are serious aspirants. So prelims is doing what? It is picking you from a lot जिसमें से हो सकता है बहुत लोग सीरियस नहीं होंगे तैयारी को लेके, and it is putting you amongst those students who are serious. It is not contributing to your selection or something. There have been people जिनके prelims में उतने ही आए जितना कट ऑफ था. There was one pol science topper, अनमोल शेर सिंह बेदी. He was rank 2. उस साल कट ऑफ 116 था, उसके 116 ही है एग्जैक्टली. बट मेंस में मार्क्स अच्छे आ गए. इनफैक्ट दिस ईयर किरण कामते रैंक 53, 92.6 कट ऑफ था एंड 93 पॉइंट समथिंग आया. 0.68 मार्क्स बस उसके अलग है, बट ही गॉट रैंक 53. सो प्रीलिम्स इज जस्ट अ ट्रबल मेकर फॉर अस. प्रीलिम्स में एक्चुअली मेरिट भी टेस्ट नहीं होता है ठीक से, एंड विद दिस काइंड ऑफ पेपर मेरिट तो बिल्कुल नहीं टेस्ट होगा. बिकॉज इफ इट्स ऑल अबाउट कि तुक्का लगाना है तो फिर कोई भी लगा सकता है, फिर पढ़ने की क्या जरूरत है. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर मेंस. मेंस में आप 7 पेपर्स 3 आवर्स ईच, टोटल 9 पेपर्स होते हैं. आई एम नॉट काउंटिंग द क्वालिफाइंग वन, but 7 papers 3 hours each, 21 hours. You cannot remain lucky for 21 hours. You cannot remain unlucky for 21 hours. Prelims का जो पेपर है वो होता है 2 घंटे का, but the real selection or rejection happens in the last 15 minutes when you'll have marked some question as doubtful and you take decision on that. That can take you on that side of the cutoff or this side. क्योंकि उस पर आप डिसीजन तभी लेंगे जब आपको लग रहा होगा कि नहीं इतने से नहीं हो पाएगा. इनफैक्ट अनदर टॉपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्मिथ पांचाल, फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट के 10 मिनट में उसने कुछ 5 क्वेश्चन किए, 5 गलत हो गए, एंड दैट्स इट. सो दिस एग्जाम इज नॉट ऑफ 2 hours, दिस इज ऑफ 15 minutes. काफी लक फैक्टर मैटर करता है. दिस ईयर one of the rankers, he is somewhere around 100 से थोड़ा ऊपर है. Since he's from general category, he will not get IAS, मतलब 100 से 110 के बीच में ही है, so IAS नहीं मिलेगा. Because of a physical factor, he will not get IPS, so he will get IRS. ठीक है, height factor जो होता है, he will get IRS, and therefore he had given exam again. prelims नहीं हुआ. selected लोग की बात करो, और ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आप दे दूंगा जो ऐसा होता है. इनफैक्ट विश्वजीत गुप्ता विल बी इन मेंटरिंग विद अस, व्हेन ही गिव इंटरव्यू के बाद शायद प्रीलिम्स नहीं हुआ था. तो इट इज वेरी मच डाइसी. तो प्रीलिम्स इज ऑफ दैट नेचर. ठीक है, इंटरव्यू की बात करें, देन रफ अराउंड 25 to 30 मिनट्स का टाइम स्पैन होता है, एंड उसमें आपके 275 मार्क्स डिसाइड हो रहे हैं, एंड इंटरव्यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन. This year amongst the selected, we have student जिनके 225 आए, और ऐसे भी हैं जिनके 216 आए. It has, and this person again, I think 568, and he is from political science only. He has the lowest in the interview. ठीक, and I know him, is a very brilliant chap. ठीक, but because of the interview marks जो है
इतने कम, अरे सॉरी 216 कह रहा हूँ, 116. So it was just political science which saved him. जिससे कि लिस्ट में ही केम, अदरवाइज तो फिर संभव नहीं. पॉलिटिकल साइंस में 275 के आसपास ही had. So what I want to say is ना कि out of the 3 stages, this is the only stage which really tests your merit and you can rely on that. ये टेस्ट मैच की तरह है, 5 दिन आपको मौका मिल रहा है. पहला एक दिन खराब गया तो you have the chances of bouncing back. In fact, there have been toppers 1 year ranked 54. His essay paper went bad. और कैसे खराब गया? That थोड़ा वो फर्स्ट डे था, रश था, ही वॉज नॉट एबल टू रीच, पहले जस्ट रीच्ड ऑन टाइम एंड देन ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम एंड पेपर मिला. तो व्हाट ही डिड, आपको पता होगा ऐसे में आपके पास 2 सेक्शंस होते हैं, दोनों सेक्शंस में से आपको जो है टॉपिक उठाना होता है. एंड ही सेलेक्टेड 2 टॉपिक्स फॉर राइटिंग essay एंड ही रोट टॉपिक नंबर 1 एंड ही वॉज उतना घबराया हुआ था and he started writing the content of topic number 2. घबराए में, टॉपिक नंबर 1 ऊपर लिखा हुआ है, he started writing the content of topic number 2 और 3 पेज लिखने के बाद ही realized कि मैंने ऐसे किया है. फिर उसने क्या किया, तीनों को काटा और काटने के बाद रियलाइज किया कि मैं टॉपिक भी तो काट सकता था, टॉपिक भी तो काट सकता था, बट अभी हमारे लिए आसान लग रहा है. हंसी आती, मेरे को भी हंसी आती. लेकिन ही वॉज फ्रॉम IIT दिल्ली, तो ऐसा नहीं है कि मूर्ख लड़का था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपर था वो, ठीक है, करेंट आंध्र प्रदेश कैडर. बट इन दैट स्ट्रेस सिचुएशन, आपको ऑलरेडी पता है कि आप लेट पहुंच रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि इफ दिस डज नॉट वर्क आउट देन एंटायर ईयर इज गोइंग टू बी वेस्टेड. आपने प्लेसमेंट्स छोड़ी है, लेफ्ट अ वेरी हाई पेइंग जॉब फॉर दिस, सो इट बिकम्स दैट थिंग. एंड व्हेन ही केम आउट ऑफ द एसे पेपर ही वाज क्राइंग कि आई हैव जस्ट, सब कुछ खराब हो गया. But again, the beauty of mains is it gives you 6 other opportunities to bounce back. First attempt में rank 54 ला के selection हुआ. तो basically mains is that stage which is giving you that gravity. यहाँ पे 21 घंटे ना ही आप lucky रह सकते हैं और ना ही unlucky रह सकते हैं, ठीक है. Now out of these 21 hours, the 2 papers are going to be of optionals. आपका ऑप्शनल PSIR है, so it is not just contributing 500, it is going to contribute somewhere around 700 because there's lot of overlap and utilize this overlap. अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर कैसे इसको यूटिलाइज करें. जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, तो जो आपने GS2 में पढ़ा होगा यहाँ पे भी वही पढ़ेंगे. तो वी आर नॉट गोइंग टू डिफरेंट कि आप GS2 में यदि सर ने पढ़ाया होगा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केम इन केशवानंद भारती, तो मैं SR बोमई थोड़ी बताऊंगा, मैं भी तो केशवानंद भारती ही बताऊंगा, isn't it? Utilize this overlap. And for that matter, you will see that political science is having overlap with essay. Lot of content direct use हो जाएगा of PSIR into the essay. More philosophical essay, better is it for you because you are going to utilize that knowledge. Then second, GS paper 1, हमें Indian national movement पढ़ना है. We have to study about history. वर्ल्ड हिस्ट्री में कोल्ड वॉर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, राइट. पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का अच्छा खासा पार्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो यूटिलाइज इट. GS पेपर 2, सर ने आपको बताया होगा पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इसके साथ ही एंड देन IR. पॉलिटी एंड IR वी आर गोइंग टू कवर हियर कॉम्प्रहेंसिवली, ठीक है. देन कम्स GS3 का पेपर, जहां पे माइनर ओवरलैप्स है. वी हैव टू स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इनफैक्ट IR में जो चीजें पढ़ेंगे आपके इंटरनल सिक्योरिटी में भी वो काम देगा. सो इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. देन कम्स योर GS पेपर 4, ethics. Now in ethics, 2 type of questions are asked. One is the concept based philosophical questions and then we have the case study. केस स्टडी में लिमिटेड यूज होगा क्योंकि उसमें सिचुएशन बेस्ड आपको आंसरिंग करनी होती है, बट दिस पार्ट यू कैन
यूटिलाइज योर पॉलिटिकल साइंस नॉलेज। इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सोक्रेटिस के स्टेटमेंट से, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एथिक्स में पूछा गया है। रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस से क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी अंबेडकर से पूछा गया है, बुद्ध पे पूछा गया है। ऑल दैट यू आर गोइंग टू स्टडी हियर। So this is how you can utilize in general studies paper 4. And if you qualify mains, you will be facing interview. अब इंटरव्यू में चाहे आपका कोई भी ऑप्शनल रहे, there will always be question from 3 fields. एक तो इकोनॉमिक्स से रहेगा, by why is Indian rupee falling across dollars, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन IR से पक्का रहेगा, स्पेशली यदि आपने फॉरेन सर्विस ऑप्ट किया है और यदि बोर्ड में कोई फॉरेन सर्विस ऑफिसर बैठा हुआ है तो IR से पूछेगा, और नहीं भी बैठा हुआ है तो सो मच गोइंग ऑन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि उसके बिना तो पूरा ही नहीं होगा। एंड देन द पॉलिटिक्स पार्ट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इफ यू बिलोंग टू राजस्थान देन व्हाई देयर इज नो मेजर रीजनल पार्टी इन राजस्थान, if you belong to UP then how is caste factor that important in UP, if you belong to Tamil Nadu how is language factor such a big factor in Tamil Nadu politics, why only regional parties have been power since 1967 in Tamil Nadu. So if you have studied in political science then ये दो questions के आप जवाब जो है वो काफी mature manner में दे सकते हैं। So utilize this overlap, this is going to be helpful. So again coming to the timeline wala part jo tha, you have to prepare for mains. In fact I'll show you example. 2014 exam jo hua tha, rank 1 was Ira Singhal, she is in the ACMET cadre only. That year the cutoff was 889, that was the final cutoff, and Ira Singhal rank 1 उनके मेंस में 920 थे। टोटल कट ऑफ कितना है 8089, उनके मेंस में केवल कितने थे 920 थे। दैट मींस इवन इफ शी गेट्स 0 इन इंटरव्यू शी विल गेट सेलेक्टेड, 0 भी मिल जाएगा। और 920 मार्क्स पे उस साल जो रैंक आया था दैट वाज 267 रैंक, यानी रेवेन्यू सर्विस तो पक्का हो सकता है, इन सर्टेन केसेस IPS भी मिल सकता है, यदि और रिजर्वेशन रहा तो IS भी पक्का। तो दिस इज द पावर ऑफ द मेंस एग्जाम, ठीक है। तो जब तक स्टूडेंट इंटरव्यू में जाता है ना, व्हेन द स्टूडेंट्स कम फॉर द इंटरव्यूज दे से वी आर फीलिंग नर्वस, माय ओनली रिस्पॉन्स इज कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन होना था तो हो चुका है और रिजेक्शन होना है तो हो चुका है, बिकॉज दैट इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर मेंस पेपर। इंटरव्यू में तो बस आपके रैंक्स ऊपर नीचे आएंगे। सो दिस इज द स्टेज यू हैव टू वर्क ऑन, और इसलिए मैंने कहा कि जो टाइमलाइन है कि दिस इज द कोर ऑफ योर प्रिपरेशन, दिस इज द कोर ऑफ योर प्रिपरेशन। नाउ दिस हैज 3 कंपोनेंट, एसे, जनरल स्टडीज एंड PSIR, ठीक है, ये तीनों चीज। Somehow in my opinion GS और पॉल साइंस के ही नॉलेज मोस्टली ऐसे में जाते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आपको ऐसे में उसको ढालना पड़ेगा, बट मोस्टली नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम दीज 2 फील्ड्स ओनली, ठीक है। एंड ऐसे इज समथिंग जो कि हो सकता है थोड़ा हम आगे भी चलें तो हो जाएगा। देयर हैव बीन पीपल जो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही 4, 5, 10 ऐसे उन्होंने लिखा है और हो गया। तो आउट ऑफ दीज 3 द कोर लाइज इन जनरल स्टडीज एंड द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज गिविंग यू 500 मार्क्स, ठीक है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वी हैव टू गाइडिंग लाइन्स इन पॉलिटिकल साइंस। वन इज आवर PSIR सिलेबस, जो सिलेबस में लिखा है उससे हमें बिल्कुल नहीं हटना है, बिकॉज UPSC विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर इटसेल्फ। एंड सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज the previous year question. See, UPSC is not telling us that how the questions are getting evaluated. Now imagine that we all are working for only one thing. हमारा एक ही एम है कि अगस्त 2027 में जो आप पेपर लिखें,
you should be able to write good answer. This is the only है. ये जितना भी आप कर रहे हैं ना 3 क्लासेस, वो उसी चीज के लिए कर रहे हैं. अब बेस्ट तो होता कि यदि किसी को पता चल जाता कि वो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यदि किसी को पता चल जाए, ठीक है, उसमें से 8 में से छोड़ो, 8 में से 5 करना होता है, पता है ना फॉल्स में उसका स्ट्रक्चर. जिस 5 क्वेश्चन पता चल जाए उसमें से आप पढ़ के जाओगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा. और उसके कंपैरिजन में किसने 100 किताबें पढ़ी हैं उसका नहीं हो सकता है हो भी जाए नहीं भी हो जाए, बट इसका तो 100% होगा. अब since it is not possible, and fortunately it is not possible to know those questions, so next outer periphery is previous year questions. UPSC is a very opaque body. हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, व्हाट इज द ट्रेंड. तो एक ही चीज है कि इफ वी लुक इनटू द PYQs, देन वी कैन ब्रिंग सर्टेनिटी इनटू दिस प्रिपरेशन. ठीक है, PYQ को यदि नहीं देखोगे देन इट कैन मेक यू विल बी ट्रबल्ड. और PYQ से देख के हमको थीम निकालना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पहला जो थिंकर है वो है प्लेटो, है ना. प्लेटो अगेन इट कैन बी अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, इतना कॉम्प्रिहेंसिव. बट UPSC हैज आस्क्ड जस्ट 5 themes from that. Plato as a philosopher king, Plato's theory of forms, Plato's communism, Plato's education and Plato's philosopher king. उसके अलावा कोई चौथा थीम छठा थीम पूछा ही नहीं, तो आप क्यों उसको पढ़ेंगे. फिर if you talk about, let us say, Hobbes, then Hobbes as an individualist, Hobbes as an absolutist, Hobbes' state of nature or human nature, and the fourth theme is Hobbes' theory of obligation. 5th क्वेश्चन पूछा ही नहीं. तो ऐसे ही देखेंगे जुडिशरी में ओनली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन: जुडिशियल एक्टिविज्म, सुप्रीम कोर्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एंड थर्ड इज जुडिशियल अपॉइंटमेंट. 4th क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड. सो वंस वी लुक इनटू दीज थीम्स, सी ऐसा नहीं कि टॉपर्स के पास 24 घंटे की जगह 48 घंटे होते हैं, बट दे डोंट चैनलाइज देयर एनर्जी इनटू अननेसेसरी थिंग्स. कि जो नहीं भी, हाँ एक थॉट प्रोसेस है, क्या सर पता हो सकता है अगले साल पूछ दे, अभी तक नहीं पूछा है, तो वैसे तो फिर पूरी सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा. बट द प्रिपरेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज बीन द ट्रेंड. अब UPSC प्रीलिम्स जैसे क्वेश्चन पूछने लगेगा तब तो उसका तो कोई नहीं गेस कर सकता. सो दैट्स व्हाई एज वी स्टार्ट आवर PSIR कोर्स विल बी लिमिटिंग स्ट्रिक्टली आवरसेल्फ टू द सिलेबस एंड टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड रिमेंबर, ये जो टाइमलाइन है जो मैंने बताया, we are starting now, and after that, after let us say 2-3 months, maybe from mid of August, हमने एक पहला सेक्शन फिनिश किया, then start doing some answer writing also, because UPSC को इससे नहीं मतलब कि आपने कितना पढ़ा है. UPSC को बस एक चीज से मतलब है कि आपने जो लिखा है इज इट एक्सेप्टेबल. और मैंने बताया ना कि इंटरव्यू में तो when you are sitting before the board, they have the DAF, they will know about your name, your state, your community, your education background. There can be some biasness there. ठीक है, हो सकता है कि आप उनके स्टेट से हैं तो they will award you some +5 marks. ठीक है, या फिर it can be otherwise also. If you're from very good educational background, आपने बेस्ट कॉलेज फ्रॉम इंडिया से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप अब्रॉड से पढ़ के आए हैं, so of course every human will have, this person deserves. ठीक है, but in mains the UPSC is not knowing that what is your educational, social, political background. There's only one thing going to them, and that is your answer. That's it. आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं कि बबलू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, किसी को पता नहीं. और तब तक दैट इज द थिंग विच इज डिसाइडिंग. सो योर प्रिपरेशन, इसको मैं समराइज करूं तो कुछ ऐसा होगा कि प्रिपरेशन ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम is actually the preparation for mains, and preparation for mains is answer writing. That's it. अब मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं कि यदि क्वेश्चन आ जाए, राइट नेशनल एंथम,
तभी लिख देंगे जनगण मन अधिनायक जय, और एकदम फिक्स टाइम में लिख देंगे. And 80% of the people don't understand the complete meaning of the text. But लिख सभी देंगे. Why? Because we have mugged it up. इवेल्यूएटर को कहां से पता है कि आपने समझ के लिखा है कि you just mugged it up and then you have written. So this is the thing. Don't fall for perfectionism. Don't wait कि जब तक एकदम पूरा समझ नहीं जाए. ना ही वो काम पॉसिबल है इस प्रिपरेशन में, nor is it possible after selection in service. India is a resource deficit country. As a superintendent of police, आपको चाहिए होंगे 200 लोग with sophisticated weapons. आपको मिलेंगे मे बी 100 लोग with लाठी. You cannot run away from that. आपको मैनेज करना पड़ेगा. So here also the syllabus is huge. You have to study everything. So don't make your life more difficult by further expanding it. I'll show you one graph. UPSC का एक रिपोर्ट आता है, एनुअल रिपोर्ट आता है. In that graph UPSC has shown कि जो सिलेक्शन कर्व है ना UPSC में is something like that. That means first attempt में some 9% people get selected. Then second attempt में some 12% people are getting selected. The maximum selection is happening in third and fourth attempt. उसके बाद fifth and sixth में वो decline होने लगता है. I'll show you, it is in the UPSC annual report. वो उसके वेबसाइट पे. Now why it is declining from here? Because वो momentum जो है ना finish हो जाता है. ठीक है, ऑफ कोर्स नॉलेज आ रहा है, बट मोमेंटम होता है ना, आपको लगने लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें. बट वाई इट इज नॉट हैपनिंग इन द फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट? यही बच्चे यहां जाके सेलेक्ट हो रहे हैं, यहां नहीं सेलेक्ट हो पा रहे. ऐसा थोड़ी है कि दे आर वेटिंग फॉर कि 2 अटेम्प्ट एक बार अपना निकल जाए उसके बाद करेंगे. नहीं, मेहनत शुरुआत से कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. अब रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत का मतलब होगा कि स्टार्टिंग विथ 3 न्यूज़पेपर्स. ये कहना कि मैं खुद ही न्यूज़पेपर पढ़ के मैं सारे नोट्स बनाऊंगा, मैं ही, आई विल डू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. टीचर यहाँ पे प्लेटो पढ़ा रहा है, फिर भी सर और कौन सी किताब इसके अलावा पढ़ सकते हैं? किताब तो मैं 10 बता दूंगा, खरीद भी सकते हो, लेकिन किताब से ही पढ़ना था तो हमें पैसे क्यों दिए? Isn't it? So आइडियलिस्ट अप्रोच कि इतना पढ़ लिया, इसको और 2 किताब से पढ़ ले ताकि बाकियों से मेरा बेहतर आंसर हो जाए. रिमेंबर, रैंक 1 जो आता है, इट इज कमिंग 52% मार्क्स में रैंक 1 आ जाता है. Isn't it? जो 2025 मार्क्स है उसमें 1043 आप लेके आते हैं, रैंक 1 आ जाता है. That means answers that you are sending to UPSC, they are not the excellent answers. Excellent answer में 52% थोड़ी मिलता. They are above average answers. And unfortunately we are not able to write above average answer because किसी एक हिस्से को, सिलेबस को हम परफेक्ट करने में लगे हुए हैं. तो जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, उसको हमने बहुत परफेक्ट कर लिया. What about social justice? What about governance? What about the disaster management, science and tech? क्वेश्चन तो वहां से भी आएगा. यहाँ पे भी हमने पेपर 1 को परफेक्ट कर लिया, 1A को परफेक्ट कर लिया. What about West Asia? What about United Nations? What about comparative politics? क्वेश्चन तो वहां से भी आने वाले हैं. So these mistakes people realize only in after first and second attempt, and then they realize कि नहीं, ये जो अभी तक काम कर रहे थे ना वो सही नहीं था. कि जब हमें ऑलरेडी नोट्स मिल रहे हैं तो क्या जरूरी है कि सब कुछ हम स्क्रैच से खुद से ही बना. एंड यू विल एंड अप मेकिंग सच नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर जो आपको खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा. क्योंकि एनी इंस्टीट्यूट विच इज प्रोवाइडिंग यू द, लेट अस से एनी नोट्स, द करंट अफेयर मैगजीन, देयर आर 4 पीपल वर्किंग ऑन दैट. उनका काम ही वही है. आप केवल हिंदू से पढ़ के नोट्स बनाएंगे. दे आर रीडिंग 3-4 newspapers, PIB, government websites and all, and they are making it for you. आप जब नोट्स बनाने बैठोगे तो जैसे G7 सबमिट हुआ, उस पे आर्टिकल्स आने लगे, 20 आर्टिकल आ चुके होंगे. डेली बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप लिखोगे, वो जरूरत नहीं है. एक्चुअली व्हाट केम आउट ऑफ G7 इज इंपॉर्टेंट. ऐसे G7 मीटिंग बहुत होते रहेंगे, G20 बहुत होते रहेंगे, बट व्हाट एक्चुअली केम आउट इज इंपॉर्टेंट. So don't follow the idealist approach. आपको शुरुआत से, and that's why orientation is required. कि right from the start let us fix that what are we going to do. उसको हम तय करके चले ताकि बीच में हमें
इधर उधर जाने का मौका नहीं मिला. Now this course is the PSIR course that we are going to do. The structure of the course is that there will be classes on 6 days of the week, and it will be 5 to 7:30 p.m. Okay. There are 6 tests included into this test. एक section finish होगा, एक test होगा, then another section, another test, 4 section, 4 test, and once this ends, then of entire paper 1 and of entire paper 2, we are going to take the comprehensive test. Just to ensure कि जो आपने पढ़ा है, are you able to put it into your answer or not? I hope you are aware कि जो पॉल साइंस का पेपर आता है उसमें there are 8 questions होते हैं, and these questions are divided into 2 sections, section A and section B. UPSC says कि question number 1 compulsory है, question number 5 compulsory है, and you have to select at least one more question from these and from these. You need 2 questions from here, 2 questions from here, and you have a choice in the 5th question that you can select from paper 1 also, section A also, or section B also. So out of 8 you have to write 5 questions. इसको बताना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा because in fact there was one student last year, she was not aware कि 8 में से 5 ही करने होते हैं, and पहला अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स हो गया, she went to write the paper. सेक्शनल टेस्ट दिए थे जिसमें 8 में से 8 कंपलसरी होते हैं, एंड इन पेपर 1 ऑफ द PSIR शी रोट फास्ट एंड आउट ऑफ 8 शी कुड डू ओनली 6 एंड शी केम आउट क्राइंग कि 2 क्वेश्चन छूट गया. देन पीपल एट द सेंटर टोल्ड कि नहीं, एक एक्स्ट्रा करके आई हो तो छूटा नहीं. एंड देन ऑफ कोर्स इन द सेकेंड पेपर शी डिड 5. तो जो इंसान 6 क्वेश्चन कर सकता है तो उसने 5 किया होगा तो बहुत आसानी से किया. Luckily, she got selected in mains. She gave interview, and since in interview she had 214 last year. इस बार तो 225 तक मार्क्स गए हैं, ठीक है. Last year 214, which was one of the highest in India. She got selected through the reserve list. अब imagine करो कि यदि उसने ये mistake नहीं करी होती, then she would have got her desired rank also. ठीक है. And she was a very serious student. Her parents are into bureaucracy, into the revenue service. But कभी-कभी ऐसे mistakes हो जाते हैं. मतलब I also came to know about this mistake for the first time कि कोई serious aspirant ऐसा mistake कर सकता है. So we have to do questions like this. इसमें मैं suggest करता हूँ कि always do question number 1 first. ये 5 question आपको करने होंगे in 3 hours. 3 hours में करने होंगे. So I suggest if you have to go do 5 questions in 3 hours, so roughly you are getting 35 minutes for 1 question. उसके सब पार्ट्स भी होते हैं, है ना. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सब पार्ट्स होते हैं, 5-10 मार्कर, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 के ऐसे 5 सब पार्ट्स होते हैं. 2, 3, 4, 6, 7, 8 के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट 20 मार्कर होता है, सेकेंड और थर्ड जो होता है वो 15 मार्कर होता है. इन टोटल 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन. इन दिस आई सजेस्ट दैट ऑलवेज गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट. 35 मिनट्स का टाइम है, गिव इट 45 मिनट्स. 45 मिनट्स उसको आराम से दे दो. वाई? बिकॉज दैट इज द फर्स्ट आंसर इवेल्युएटर इज गोइंग टू रीड इन योर पेपर, एंड बाय रीडिंग दैट आंसर he will make a perception about you कि what kind of student you are. अब स्टूडेंट्स में मिस्टेक क्या करते हैं कि चूंकि ये 10-10 मार्कर है तो लास्ट में करते हैं. बड़े क्वेश्चंस कर दिए, 10 मार्कर लास्ट में करते हैं, क्योंकि 10 मार्कर में आपको 2 पेज लिखना होगा, 15 मार्कर में 3 पेजेस, 20 मार्कर में 4 पेजेस. तो उनका थॉट प्रोसेस होता है जो कि ठीक है एक लेवल पे कि 10 मार्कर है लास्ट में करेंगे, बट इवैल्यूएटर आपका एक कॉम्प्रोमाइज्ड आंसर देख रहा है. जो 35 मिनट्स में लिखना चाहिए था उसको आपने 15 मिनट में फिनिश कर दिया, एंड ही विल मेक अ परसेप्शन बिकॉज ऑफ दैट.
इनफैक्ट पहले यूपीएससी जो एग्जाम लेता था ना, इट यूज टू बी जैसे यूनिवर्सिटी में होता है, एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर होता था, आंसर शीट होते हैं और हम आंसर क्वेश्चन नंबर लेके लिखते हैं। अभी यूपीएससी तो प्रॉपर क्वेश्चन भी प्रिंटेड होते हैं उस पर। सो अर्लियर व्हाट वाज द परसेप्शन कि मैं इवैल्यूएटर हूं, तो जो पहला क्वेश्चन है, लेटेस्ट से 3 पेजेस लिखे गए हैं, पहला क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से चेक करूंगा, और लेटेस्ट से पहला क्वेश्चन में स्टूडेंट को आया 7 आउट ऑफ 10, मुझे लग रहा है 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल बी कन्विंस, मैं आराम से अगले क्वेश्चन में 6 आउट ऑफ 10, अगले में 5 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10 देते हुए चला जाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट ने तो सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखा होगा ना जो कि वो बेस्ट जानता है, वही तो एग्जाम में वही तो लिखते हैं जो हम बेस्ट जानते हैं। सो बट नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल, अब तो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन भी लिखा रहता है आपके आंसर शीट में। तो फर्स्ट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज इमेजिन करो 2 सिचुएशन कि आपके पास 15 मिनट्स बचे हुए हैं लास्ट के आंसर को लिखने के लिए। एक ऑप्शन है कि 5-10 मार्कर यू हैव टू अटेम्प्ट, दूसरा है कि 20 मार्कर प्लस 15 मार्कर प्लस 15 मार्कर। दिस साइकोलॉजिकली विल अपीयर इजी टू यू। 2-2 पेजेस लिखने हैं इसमें, आप एक एक पेज भी लिख के काम चला लेंगे। बट आपके पास यदि ये सिचुएशन है तो आपको लगेगा कि मेरे 20 मार्कर में ही मेरे 15 मिनट चले जाएंगे। यू बी साइकोलॉजिकली इन सो मच ऑफ प्रेशर कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बर्बाद कर देंगे। इसीलिए फर्स्ट डू क्वेश्चन नंबर 1, राइट योर बेस्ट आंसर, देन लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो कंपल्सरी ही है। इन बिटवीन वॉट एवर इज योर नॉलेज लेवल, उस हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर को करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो 6 days per week we are going to have lectures, 6 tests we are going to have in this course, ठीक है। And the format of the lecture is going to be that in the class I'll be explaining a topic, okay, and then I'll dictating the notes. There will be some factual topics जिसके dictation नहीं करके I'll give the handout and I'll just explain to you. अब जैसे कि statutory and constitutional bodies है, अब उसमें मैं पढ़ना है नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल NHRC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, फॉर बैकवर्ड कास्ट, फॉर माइनॉरिटीज। अब आप देखेंगे कि सब में एक ही कहानी है, रिपीट हो रही है। सो वाई विल आई बी वरिंग माई सेल्फ डिक्टेट करके और आपको भी क्यों कर देना कि आप उसी चीज को बार बार लिखेंगे। सो इफ द टॉपिक इज कॉन्सेप्चुअल आई विल बी मेकिंग यू डिक्टेटिंग यू दैट, आप आराम से लिखना। बट इफ इट इज फैक्चुअल देन विल बी कीपिंग द मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स, ताकि कंटेंट आपके पास पूरा जाएगा। GS2 और जो IGP सेक्शन है यहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। GS2 में यू गो मोर वाइड, आप रेगुलेटिंग एक्ट वो सारी चीजें पढ़ते हैं। हियर इट इज मोर ऑन द थीम्स ऑफ द टॉपिक। सो इफ देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि हमें डिटेल में जाना है तो वही करूंगा, दैट आई विल गिव इट द हैंड आउट एंड आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा, आपका भी टाइम बचेगा। सो इट विल बी द मिक्सचर ऑफ बोथ डिक्टेशन एज वेल एज द हैंड आउट्स। डाउट्स इन द क्लास, वेन एवर यू फील एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड, वी कैन डिस्कस। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विल हैव अ सेपरेट जूम सेशन, उससे करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट द सिलेबस। सिलेबस प्रिंट आउट नहीं मंगाया क्या और यहाँ पे सिलेबस का प्रिंट आउट, सिलेबस का प्रिंट आउट मैंने बोला था, आ जाएगा। चलो, इंडियन एयरफोर्स लेके आ रही है क्या? अभी तो नीट कब है एग्जाम? कल ही है ना? अच्छा, लगा कि उसके लिए भी। चलो, एनीवे लेट्स लुक एट द सिलेबस, ओके। हाँ, एक चीज और है, we are going to give proportionate space to each section. पेपर 1 और पेपर 2 को बराबर बराबर टाइम देंगे। पेपर 1 में भी 1A और 1B को नियर प्रोपोर्शनेट टाइम वी विल गिव, बिकॉज UPSC is asking same number of question across. It does not make sense कि हम क्यों किसी एक सेक्शन को ओवर एम्फसाइज करें only to compromise the other sections of the syllabus, ठीक है।
Now, paper 1, section A, it is the typical core of political science. We have to study about theory and thought. So, thought may we have to study about the Western political thought. We have to study about Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Mill, Marx, Gramsci. Okay. So, इसमें भी when we'll be starting, then of course there will be some thinkers जिसमें थोड़ा समय लगेगा, जैसे प्लेटो है. Then Marx is one thinker जिसमें थोड़ा समय लगेगा. There are others like Gramsci, बहुत focused question आता है, hegemony पे आता है. Hannah Arendt, there are 3 areas. Hannah Arendt, theories of power, theory of action, banality of evil, इस पे question आता है. We'll be focusing on that. Again, Machiavelli will be dedicating some 3 classes to that. And इसमें WPT में ना, there are certain pairs that we will find which will help you in writing better answers. जैसे whenever you are answering on Plato and Aristotle, do it in comparative terms. Aristotle is because of Plato. Aristotle tried to correct Plato. Plato was utopian, radical, idealist. Aristotle is more pragmatic. He is trying to correct Plato. Then we'll find that we can connect Hobbes and Locke, we can compare. They both are social contractualists. But उनके writing में difference है. One is giving very narrow concept of right. Locke is giving a very broad concept of right. इनके social contract भी अलग है. Similarly, जब हम Marx को पढ़ेंगे, then we can write answer by comparing Marx and Gramsci. In fact, Gramsci का आप आंसर Marx को बिना रेफर किए लिख ही नहीं सकते. Or we can also get in Lenin at some point of time to make this comparison. So such kind of comparison, if we talk about J.S. Mill, Bentham से compare करके हम एक better answer लिख सकते हैं. So we are going to do in this comparative terms, what is their core ideas, we'll be talking about it. Political theory, अब यहाँ पे एक approach और हम follow करेंगे, that is integrative approach. There are things जो कि हमें multiple बार पढ़ना है same syllabus में. For example, गांधी, Indian political thought में गांधी के बारे में पढ़ना है. Then ideology, Gandhism. Then paper 1 section B, Indian national movement, Gandhian approaches, Satyagraha, non-violence we have to study. And then in paper 1 section B, Gandhian approach to economic development. तो अब क्या है ना कि इसको 4 जगह हम सेग्रीगेटेड तरीके से नहीं पढ़ेंगे. वी कैन कंबाइन. गांधी ने तो एक ही चीज कही होगी ना, राइट? सिलेबस में 4 जगह दिया, इसका मतलब नहीं है कि गांधी से डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. सो वी विल इंटीग्रेट दिस approach. Similarly, if we talk about this political theory, meaning and approaches, this will have a overlap with paper 2 section A topic number 1, that is approaches to comparative politics. जो political science के background वाले होंगे उनको पता होगा. Behavioral approach, post-behavioral approach, empirical approach, normative approach, systems theory, structural functional approach. So दोनों जगह हमें पढ़ना है. तो ऐसा नहीं है कि हम separately पढ़ेंगे. We will integrate it in that particular manner. Similarly, theory of state, यहाँ पे भी हमें पढ़ना है. Liberal, neoliberal, Marxist, pluralist, post-colonialist and feminist. And we have one topic in paper 2 section A, topic number 2, that is state in comparative perspective. वहां पे भी हमें capitalist state, socialist state, advanced industrial state, the developing societies, वहां पे भी पढ़ना है. तो एक चीज को 2 जगह क्यों पढ़ेंगे? We will integrate it in a manner. वहां पे separately जो particular questions है उसको हम देख लेंगे. So that will help us in studying. So this integrative social movement, we have to study social movement in 1B also in context of India. And we have to study social movement in paper 2 section A topic number 3. अब यहाँ पे देखेंगे social movement हमें यहाँ पढ़ना है. Social movement में 3 movement we have to study. Human right movement, feminist movement, environmentalist movement. ठीक है. Then
पेपर 2 सेक्शन है पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पे हमें पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. So to the extent possible, we will do it in the integrated manner so that your and my time and effort are going to be saved. Repeat करके ऐसा ना हो कि notes बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि content तो उतना ही रहने वाला है. Similarly, if you see India and the nuclear question, we have to study in 2A also and in 2B also. United Nations हमें दोनों जगह पढ़ना है. So we are going to do it in the integrated manner. So paper 1 section A के जो topics हैं, so basically political theory, meaning and approaches, theory of state, justice, primary focus is on Rawls theory of justice and its critique. Question उसी पे आता है, ठीक है. Equality, rights, democracy, concept of power. अब concept of power में लिखा है hegemony, ideology and legitimacy. Hegemony तो हम already Gramsci में पढ़ेंगे ही ना, यहाँ पे separately क्या पढ़े, वही चीज तो है, ठीक है. Ideologies anyway we are going to study in this particular paper, so there is no point to study it separately. So all this we are going to do, ठीक है. Then Indian political thought, देखा जाए तो यूपीएससी अधिक फोकस देता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे इन कंपैरिजन टू द इंडियन पॉलिटिकल थॉट. सो इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें प्राइमरीली एक तो क्वेश्चन रहता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ Indian political thought. Then we will get question from Dharma Shastra and comparison with Arthashastra tradition. So basically comparison of Manusmriti and Arthashastra of Kautilya. Then Buddhist tradition. सर सैयद अहमद खान से एक ही क्वेश्चन आता है, सर सैयद अहमद खान एज द रिफॉर्मर, या फिर उसी का सबसेट आ जाएगा सर सैयद अहमद खान एज एजुकेशनिस्ट. ठीक है. अभी रिसेंटली एएमयू से जुड़ा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था 2 साल पहले, इन विच द माइनॉरिटी नेचर ऑफ एएमयू वाज अपहेल्ड. तो जब हम इसको पढ़ेंगे हम उसको कंटेम्प्रेरी एग्जांपल से कनेक्ट कर देंगे. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट श्री अरबिंदो, इसमें एक ही थीम जो है जो रिकरेंट है, दैट इज नेशनलिज्म ऑफ अरबिंदो घोष, नेशनलिज्म. देन एम के गांधी, हाँ ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और चूंकि हमें इंटीग्रेटेड मैनर में करना है तो ये थोड़ा समय लेगा, विल फिनिश इट. अंबेडकर इज अगेन अ बिग टॉपिक. इनफैक्ट अंबेडकर और गांधी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. एंड कौटिल्य, 3 पीपल, कौटिल्य, अंबेडकर, गांधी. मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हियर ओनली. कौटिल्य में भी फिक्स क्वेश्चंस है, मंडल थ्योरी, सप्तांग थ्योरी, उसी में हम षडगुण सिद्धांत 4 उपायास जोड़ के पढ़ेंगे. एम एन रॉय से एक ही क्वेश्चन बनता है, बल्कि 2 क्वेश्चंस बनते हैं. एम एन रॉय का व्यू मार्क्सिज्म को लेके क्या है, एंड व्हाट इज रेडिकल ह्यूमनिज्म ऑफ एम एन रॉय. इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि इन पेपर 1 सेक्शन बी वी हैव टू स्टडी अबाउट द radical humanist perspective of the national movement. Same what we are going to study in M.N. Roy. So that's why we are going to study it in that integrated manner. Paper 1 section B, greater overlap with history and the polity section. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड हाउ, या फिर आर दे द सेम थिंग. दे आर नॉट द सेम थिंग. Difference is when you will write any answer in GS2, then you cater to the demand of that question. जो भी पूछा गया आप बताओगे उसका. Second, you refer to the articles, constitutional or legal provisions. जैसे मान के चलो क्वेश्चन आता है contempt of court, तो आप प्रेफर करोगे आर्टिकल 129 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 215 फॉर हाई कोर्ट. लीगल प्रोविजन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, क्योंकि आंसर हैज टू बी अ स्पेशलाइज्ड आंसर. सभी को पता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कोई चीज होती है, बट अभी जैसे डिफेमेशन का चल रहा था, आज तक अंजना हम क्वेश्चन ने डिफेमेशन किया खान सर पे. अब सबको पता है कि डिफेमेशन कुछ भी होता है, आदमी बोलचाल की भाषा में बोल सकता है कि तुमको डिफेमेशन हम कर देंगे, बट यू शुड नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डिफेमेशन देन इट शुड बी सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी होना चाहिए. थर्ड थिंग इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इफ एनी.
जैसे मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलूं तो आपको वहां पे एस मुलगांवकर केस लिखना पड़ेगा 1978 का, उसके बिना आप नहीं लिख सकते। डिफेमेशन की बात करें देन सुब्रमण्यम स्वामी केस आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ ब्रिंग स्पेशलाइजेशन टू योर आंसर। लिखने को डिफेमेशन पे सभी लिख देंगे, ओवरऑल सबको पता है डिफेमेशन क्या होता है, बट यू शुड नो कि भाई डिफेमेशन, यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, सिविल कंटेम्प्ट होता है। So these are the 3 things that general studies 2 paper require. Same is required in IGP also. Paper 1 IGP का मतलब है Indian Government and Politics, है ना। So here also you are require जो 1B वाला सेक्शन है, ये 3 चीजें तो होंगी ही होंगी। इसके अलावा 4th component will be the theory that you refer। जैसे मान के चलो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आंसर लिख रहे हो तो आप थॉमस हॉब्स को जोड़ सकते हैं। थॉमस हॉब्स सेज कोवेनेंट्स विदाउट वोट्स आर नथिंग बट वर्ड्स। यदि आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज पे क्वेश्चन लिख रहे हैं देन यू कैन कनेक्ट द थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। विल किमलिका को कनेक्ट कर सकते हैं, भीखू पारेख को कनेक्ट कर सकते हैं, isn't it? When you are writing answer on uniform civil code, you can bring in liberal perspective जो कि UCC को सपोर्ट करेंगे। You can bring in feminist perspective, सेला बिन हबीब, जो कि UCC को सपोर्ट करेंगे। You can bring it communitarian perspective या फिर multiculturalist perspective, जो कि इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। So in this you will be referring to theory. I'll make you write कहाँ पे कौन सी थ्योरी लगेगी। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी डेमोक्रेसी की थ्योरी लगा सकते हैं। So I'll tell you where what theory we are going to use. And then 5th is we refer to scholarly opinion. Scholarly opinion. अब इस पे ना there is a nuance. क्वेश्चन आएगा कि सर क्या can we use scholarly opinion here also? यहां पे भी यूज किया जा सकता है बट इट शुड बी वेरी वेल नोन थिंकर और स्कॉलर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज द नेम ऑफ आइवर जेनिंग्स, you can use the name of Morris Jones, you can use the name of Granville Austin, you can use the name of course Ambedkar, Gandhi, Nehru, ये लोग इनका यूज कर सकते हैं। बट when we will be writing here the traditional scholars तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, will be using area expert and contemporary scholars। जैसे यदि हम बात करेंगे दलित पॉलिटिक्स की या फिर दलित जो पर्सपेक्टिव है, हम कंचा इलाया का नाम यूज करेंगे। विल बी यूजिंग द नेम ऑफ क्रिस्टोफी जेफरी लॉट, जो कि रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। प्रोफेसर योगेंद्र यादव हु टॉक्स अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। वी कैन टेक द नेम ऑफ प्रताप भानु मेहता when we talk about justice judiciary. We can take the name of Upendra Bakshi on rights. We can write the name of Gautam Bhatia on freedom of speech and expression. On federalism, we can write the name of Professor Rekha Saxena. DU में political science की अभी head of the department भी है, and she has her specialized study in federalism, particularly asymmetrical federalism. यदि asymmetrical federalism को against में बोलना होगा, criticize, will be using the name of Professor Amitabh Mattu, Louis Tillin. So these are the people which a political science graduate is supposed to know. And these are those scholars, thinkers जो कि सभी को पता होता है, मतलब जो आपके लक्ष्मीकांत में लिखा है आप कर सकते हैं। So this is the difference in the answer when we write in GS2 and the IGP section. The 3 dimension, the 5 dimension we have to cover. कैसे करना है I'll make you write in the class. ठीक है। Now when we look at the syllabus, Indian nationalism, basically 2 component of it. What are the perspective of Indian nationalism? ठीक है, दलित perspective, colonialist perspective, liberal perspective, feminist perspective, and then strategies of the national movement. अब इसमें आप देखेंगे ना कि लिखा हुआ है political strategies of India's freedom struggle, constitutionalism to mass सत्याग्रह, non cooperation, civil disobedience.
नाउ अनलाइक हिस्ट्री में जब मैम आपको पढ़ाएंगी तो शी विल गो इनटू वेरी मच डिटेल्स ऑफ इट, डेट वाइज, ईयर वाइज शी विल बी टॉकिंग अबाउट. हियर वी हैव टू स्टडी द थीम्स ऑफ इट, दैट्स इट. डिटेल हम यहाँ नहीं पढ़ना है. थीम्स का मतलब है कि व्हेन यू लुक एट दीज स्ट्रैटेजी, देन हाउ द नेशनल मूवमेंट बिकेम मोर रेडिकल विल टाइप. Gandhi in non-cooperation movement, was he same as in civil disobedience? Was he same as in Quit India movement? Same तो नहीं थे ना. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी ने कहा कि आई विल नॉट कॉपरेट विद द गवर्नमेंट बिकॉज इट इज नॉट द मॉरल गवर्नमेंट. सिविल डिसोबीडियंस में गांधी ने कह दिया कि आई एम नॉट कॉपरेटिंग ऑफ कोर्स बट नाउ आई विल डिसओबे यू. एक स्टेप और आगे गए. और क्विट इंडिया मूवमेंट में तो कह दिया क्विट माई कंट्री, डू और डाई. तो ये थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ द स्ट्रेटजीज ऑफ द नेशनल मूवमेंट अंडर गांधी, हाउ हैज इट इवॉल्व्ड. सिमिलरली पर्सपेक्टिव, व्हाट आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सेलियंट फीचर्स, यहां पे ध्यान देना है. टॉपिक लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. हियर वी आर नॉट गोइंग टू गो आर्टिकल वाइज, जैसा कि सर करा रहे होंगे आपके GS2 में. सर हर एक आर्टिकल को डील करेंगे बिकॉज हियर 80% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दैट विल बी ऑन द थीम ऑफ FR वर्सेस DPSP. इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वही है कि कैन वी से, इस बार या फिर लास्ट टाइम था, कैन वी से दैट DPSPs आर मोर फंडामेंटल देन फंडामेंटल राइट्स. और इसी क्वेश्चन को 4-5 तरीके से करके पूछा गया है. तो एक ही थीम आता है कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट, DPSP और फंडामेंटल राइट. तो हम आर्टिकल 19, 20, 21, 22 वैसे करके नहीं जाएंगे. विल पिक अप द थीम ऑफ इट. DPSP में भी आर्टिकल से क्वेश्चन कभी नहीं आए. एक हम UCC टॉपिक कर लेंगे क्योंकि न्यूज में चल रहा है. अदरवाइज UCC से भी जो क्वेश्चन आता है वही FR वर्सेस DPSP करके आता है. फंडामेंटल ड्यूटीज, अगेन ओनली 2 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टिल नाउ. एक 2005 में पूछा गया था और एक 2023 में पूछा गया. वही इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. सो हियर वी हैव टू स्टडी द थीम ऑफ दीज रादर देन गोइंग इनटू दिस थिंग. इसमें अमेंडमेंट लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब क्वेश्चन ऐसा अभी तक नहीं आया है और आगे भी नहीं पूछना चाहिए कि 368 के वो बताओ, प्रोसेसेस बताओ. नो, इट विल बी अ लार्जर क्वेश्चन दैट what power parliament has and how it is balanced with the judicial review power of the Supreme Court. That's how. जब हम जुडिशरी टॉपिक करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गन्स में, तो जुडिशरी में 3 ही थीम मैंने बताया. जुडिशियल एक्टिविज्म 60% टाइम यही पूछा गया है. जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. अब इसमें ये नहीं पूछा गया है कि हाउ इंक्लूसिव है बॉडीज या फिर सबऑर्डिनेट कोड, तो हमें पढ़ना ही नहीं है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक दैट. ग्रासरूट डेमोक्रेसी, 73rd 74th अमेंडमेंट. नाउ दिस टॉपिक आई वाज रेफरिंग टू, इट इज अ बिग टॉपिक बट इट इज वेरी वेरी रिपीटेटिव. तो इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, अगेन ध्यान देना GS2 में आपका टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. उसमें आपको डिटेल में पढ़ना है. यहाँ पे हमें इलेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना. वी हैव टू एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स. वहाँ इलेक्शंस पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको हाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज परफॉर्मिंग वो पढ़ना है. सो वी विल कीप रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू दिस. CAG इज इम्पॉर्टेंट. UPSC इज इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर दिस ईयर क्योंकि 100 साल पूरे हुए हैं 1926 से 2026 तक. सो वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी अ क्वेश्चन ऑन UPSC इन द मेंस एग्जाम. ठीक है. और बाकी UPSC से क्वेश्चन पूछा भी है जो UPSC ने वो लैटरल एंट्री को ही लेके पूछा है. सो देयर हैज नॉट बी लाइक ओनली एक क्वेश्चन केवल UPSC पे रहा है, कमेंट ऑन UPSC, दैट्स इट. ठीक है. देन वी विल बी एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स पार्ट ऑफ इट. मैंने बताया इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. तो यहां तक गवर्नमेंट वाला पोर्शन रहता है, फेडरलिज्म तक. आफ्टर दैट ये ट्रांजिशन है जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लानिंग कमीशन एंड ऑल. एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स ऑफ इट. 3 चीजें, सोशल मूवमेंट, रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, एंड पार्टी सिस्टम. पार्टी सिस्टम. अब पार्टी सिस्टम में भी पार्टी का नाम लेके क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी.
it will be about the ideology and the social base of that particular party. So if you see the party system, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ द पार्टीज, कि भाई राइटिस्ट पार्टीज की बात करते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद, अकाली दल, ये राइटिस्ट पार्टीज में आती हैं. लेफ्टिस्ट पार्टीज की बात करें तो ऑल द कम्युनिस्ट पार्टीज दैट वी हैव, इवन जो सबॉल्टन पार्टीज हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग ऑन द लेफ्ट. न्यू पार्टीज लाइक आम आदमी पार्टी एंड ऑल वी कैन टॉक अबाउट. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ इट. प्रेशर ग्रुप अगेन यहाँ पे भी हमें पढ़ना है, पेपर 2A में भी पढ़ना है. हियर इट इज इंडिया स्पेसिफिक, 2A में इट इज मोर इन अ कंपैरेटिव टर्म्स कि डेवलप्ड कंट्रीज के प्रेशर ग्रुप्स कैसे होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के प्रेशर ग्रुप्स कैसे होते हैं. देन सोशल मूवमेंट, द 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट. नाउ पेपर 2, it has primarily, it starts with comparative politics. After comparative politics, we have the key concepts and theory of IR. And then we have the bilateral relations. Broadly यही है, ठीक है. अब topic number 1, 2, 3 and 4, they are for comparative politics. Comparative politics. इसमें आपको comparison देखने को मिलेगा, ठीक है. Approaches, then state in comparative perspective, है ना, कि डेवलपिंग में कैसे स्टेट होता है. पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट, हाउ दे आर इन डेवलप्ड एंड हाउ दे आर इन डेवलपिंग कंट्रीज. ग्लोबलाइजेशन, रिस्पॉन्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, उन पे क्या प्रभाव इसका पड़ा है. क्वेश्चन भी इसी थीम पे पूछता है, ठीक है. देन अप्रोचेस to the study of international relation, basically theory of IR, ये थोड़ा समय लेगा. Then key concept, इससे मोस्टली 10 मार्कर यूपीएससी पूछता है. 10 मार्कर क्या करेगा, नेशनल सिक्योरिटी भी एक 10 मार्कर पूछ देगा, ठीक है. बैलेंस ऑफ पावर पे एक 10 मार्कर पूछ देगा, डेटरेंस पे पूछ देगा, ठीक है. डेटरेंस एज अ, या फिर नेशनल इंटरेस्ट एज अ स्यूडो थ्योरी ऐसे करके पूछ देगा, ठीक है. ट्रांसनेशनल एक्टर्स, कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो मोस्टली 10 मार्कर्स आर आस्क्ड, ओके. Another theme is non-aligned movement, जिसपे एक ही क्वेश्चन प्राइमरली आता है, is non-aligned movement relevant, या फिर हमें NAM 2.0 की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है. Again, evolution of international economic system, it is mostly very factual. WTO है, CMEA है, it is very factual. इसको will be doing through the PDFs only, because इसमें ऐसे facts हैं जो मैं लिखाने चलूँ तो बहुत समय लगेगा, and I cannot, मतलब आप उसको छोड़ भी नहीं सकते. तो I'll just underline it, I'll explain you the concept so that you can revise it. United Nations we have to study here also, and we have to study in this part also, India and the UN system. तो इसको हम कंपेयर करके पढ़ लेंगे. इंडिया एंड यूएन सिस्टम में एक ही मेन क्वेश्चन आता है. देयर आर 2 थीम्स आर, एक तो पीस कीपिंग को लेके आता है, एंड सेकेंड इज शुड इंडिया गेट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और नॉट. ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछ चुका है, और आगे भी पूछेगा तो यही पूछेगा, तो हम उसको तो प्रिपेयर करके जाएंगे ही जाएंगे. अनदर मेजर, देन वी एंटर इनटू इंडिया एंड वर्ल्ड. इंडिया के रिलेशन बाकी देशों से कैसे है. अब आपने देखा कि हमने नैम ऊपर किया तो साथ में ही कर लेंगे उसके साथ. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ओके. इंडिया एंड साउथ एशिया, अब इसमें बाइलैटरल रिलेशंस ऐसे नहीं मेंशन्ड है, आप नहीं देखेंगे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया अफगानिस्तान, ऐसे नहीं दिया. It is theme wise, and we are going to study in that particular theme wise only, ठीक है. लुकिस्ट पॉलिसी बहुत बार यूपीएससी अब नाउ एक्ट ईस्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी. देन इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, बेसिकली आर रिलेशन विद लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका. हर एक साल एक क्वेश्चन रहता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज इंडिया डूइंग देयर, एंड ऑफ कोर्स विल इन द आंसर विल कंपेयर विद अप्रोच ऑफ चाइना, व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड व्हाट चाइना इज डूइंग. Now this is going to be very important, India's relation with the major powers, ठीक है, जिसमें we have to study about USA, European Union, Japan, China and Russia. अब इसको जो हम पढ़ेंगे ना, we will study across 6 dimension. The introduction to this particular relation, then how has this relation evolved over a period of time,
कितने फेजेस में इवॉल्व हुआ है. थर्ड इज what are the good things between us, what are the positives where the two countries are coming together. Okay. What are the challenges between us, negatives, divergences. ठीक है. What is the way forward, what is the way forward, and what are other dimensions response dimension important for this relation. अब अदर डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि इफ इंडिया यूएसए की बात कर रहे हैं देन हाउ पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन इंडिया एंड यूएस. कि जब भी इंडिया और यूएस के हेड ऑफ द स्टेट्स मिलेंगे तो उसमें एक मुद्दा पाकिस्तान भी होता है, उस पर बात होती है. आजकल ईरान भी एक मुद्दा बन गया है कि भाई यूएस कहेगा कि डोंट गेट द इरानियन ऑयल, इंडिया कहेगा हमारी डिपेंडेंसी है, कल्चरल कनेक्ट है. ठीक है. रशिया इज वन ऑफ द फैक्टर्स. whenever in India and USA is talking, then Russia comes as a factor. और आपके आंसर में भी वो दिखना चाहिए. So these factors will be looking into. If India US डिफेंस रिलेशन की बात करें then इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस रिलेशन थे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. अब इस पे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है. Either they will ask just about evolution, यदि 10 मार्कर में पूछ रहे हैं तो 10 मार्कर में 2 ही पेज रहता है. Or what are the positives between us, या फिर what are the negatives between us. But the moment the question is coming in 15 marker, then it can be a mix of all of them. He tracking the evolution of India-US defense relation, present the challenges currently in this relation, something like that. या फिर in context of the recent political developments in Bangladesh, track the evolution of India-Bangladesh relation, something like that. तो यदि अपने पास ये themes prepared रहेंगे ना तो हमें पता होता है कि कहाँ पे क्या theme लगाना है. If it is just the challenges, केवल ये लगाएंगे. अब challenges में भी specific challenges हो सकते हैं. जैसे इंडिया चाइना के बीच में देयर कैन बी अ 10 मार्कर ऑन द शेयरिंग ऑफ द ब्रह्मपुत्र वाटर. अभी कल ही न्यूज में था कि वो डैम दे हैव स्टार्टेड मेकिंग. तो द शेयरिंग ऑफ ये इट कैन बी वन सिंगुलर क्वेश्चन बट इट विल बी 10 मार्कर. वो 15 मार्कर नहीं रहेगा क्योंकि इसका स्कोप बहुत ही कम होता है. So this is going to be important. India and the nuclear question and then recent development in West Asia. ये थोड़ा important हो गया है इस बार के लिए because West Asia is undergoing lot of things. So this is the syllabus. This is how we are going to cover. ठीक है, we are going to cover this syllabus within 7 months. What I expect from you is that be with me throughout the course. आपसे इतना उम्मीद किया जाएगा कि वॉट एवर आई एम टीचिंग यू इन द क्लास यू गो एंड रिवाइज. ठीक है. एंड नॉट इमीडिएटली बट मे बी जुलाई मिड अगस्त से 15 अगस्त के आसपास से स्टार्ट राइटिंग सम आंसर्स. आप शुरुआत में एकदम इमीडिएटली स्टार्ट करोगे देन मे बी यूल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अच्छे आंसर्स आप नहीं लिख पाओ, हो सकता है वो डिस्करेजमेंट आ जाएगी. तो ओनली व्हेन लेट अस से एक यूनिट का थोड़ा ठीक ठाक सेक्शंस हमारा फिनिश हो गया है देन यू कैन स्टार्ट डूइंग आंसर्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्लो ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू बी फर्स्ट 1B then 1A 2A 2B. 1B since many of you have started polity so it will be a gradual start. So 1B 1A 2A 2B ऐसे स्टार्ट करेंगे. 2B को लास्ट में करने का ये भी लॉजिक है कि तब तक का जो सबसे रीसेंट अपडेट आपके पास हो समवेयर अराउंड. इफ यदि हम दिसंबर के आसपास उसको कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर में कर रहे हैं, मिड जनवरी तक कर रहे हैं, तो यू विल हैव द मोस्ट अपडेटेड मटेरियल विथ यू जो कि सबसे डायनेमिक पोर्शन है हमारे सिलेबस का. ठीक है. एनी विश्वजीत एनी डाउट दैट यू हैव. और एक चीज तैयार रहना है थोड़ा देयर विल बी लॉन्ग वर्किंग आवर्स फॉर यू. 2 क्लासेस करने के बाद आई अंडरस्टैंड कि थकावट हो जाएगी बट दिल्ली आए तो इसी काम के लिए है ना. ठीक है, तो करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. इनफैक्ट मैंने राधिका को बताया था कि ये जो पूरा प्रिपरेशन है ना ये जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया था इसमें the two components of it is there are 2 components. First component होता है content creation है ना, and second component is revision and answer writing.
आंसर राइटिंग आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक रिवीजन नहीं हो, और रिवीजन तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास कंटेंट नहीं बने हो. So definitely if you are going to put 7 hours in the class, 7.5 hours in the class, don't consider it कि ये आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है. In fact, what you will study in 2.5 hours खुद से करने में 7.5 घंटे आपको लग जाएंगे. So initially what will happen, now we are in June and when you will be in writing mains, क्या होगा कि कंटेंट डेवलपमेंट अभी 90% ऑफ योर टाइम कंटेंट डेवलपमेंट विल टेक. अभी आप बहुत कंटेंट बना रहे हैं, जीएस के क्लास में भी यू आर मेकिंग कंटेंट, हियर आल्सो यू आर मेकिंग कंटेंट. दिस कंटेंट डेवलपमेंट विल बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 5%, 0% जब आप मेंस के पास पहुंचेंगे. यहाँ पे कंटेंट बनाने का क्या फायदा, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे. सिमिलरली आंसर राइटिंग, रिवीजन एंड आंसर राइटिंग, यहाँ पे हार्डली यू विल गेट 10% टाइम टू रिवाइज एंड डू आंसर राइटिंग. बट जैसे ही आप मेंस के पास पहुंचेंगे 95% टाइम जो है, 95% टाइम वो आपका आंसर राइटिंग ही लेके जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज वन पेन दैट यू हैव टू टेक. कंटेंट आपको एक बार अच्छे से बनाना पड़ेगा. एंड रिमेंबर, इफ यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन कंटेंट, रिविजन में मन नहीं लगेगा आपका, आपको भी लगेगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं. सो बी हियर क्लासेस में. I would suggest 100% be present in the class, because that is the first time when the knowledge is coming to you उस topic का. And if you are 100% in the class, वो context आपके दिमाग में हमेशा रहेगा. टीचर ने जो बात कही होगी उस समय, एग्जाम्पल दिए होंगे, यदि कुछ बताया होगा, इंस्टेंसेस बताया होगा, जब भी आप उस नोट्स को दोबारा पढ़ेंगे ना, वो क्लास लाइवली हो जाएगा आपके दिमाग में. एंड इफ यू ग्रैब दैट इंफॉर्मेशन इन द क्लास, आपको रिवीजन करने के कम जरूरत पड़ेगी. तो इफ यू आर इन द क्लास, बी 100% देयर, बिकॉज सी द जर्नी दैट यू हैव स्टार्टेड, इनफैक्ट चैलेंजिंग तो है. मतलब डोंट बी इन दिस आइडियलिस्ट वर्ल्ड, ठीक है, कि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, आई एम टेलिंग यू, है ना. तो एकदम बहुत रियलिज्म थोड़ा आना चाहिए दिमाग में. यूटोपियन वर्ल्ड में आप नहीं रह सकते. इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट. नंबर्स बताते हैं भाई 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, यानी 5 lakhs आर गिविंग अप बिफोर प्रीलिम्स इटसेल्फ, कि नहीं दे पाएंगे प्रीलिम्स. 5 lakhs से 15,000 राइटिंग मेंस, some 2.8,000 2.5,000 giving interviews, and some odd 1,000 people are getting selected. उसमें से भी मन चाहा रैंक तो टॉप 200 को ही आ रहा है, रेस्ट आर गिविंग द एग्जाम अगेन. So this is very very difficult. Numbers say this, ठीक है. So if you have to decide, मतलब यदि आपके मन में कुछ भी शंका है, तो this is the time to exit. There will be no exit afterwards. So decide and then move. And if you are into it, then 99.9% commitment का कोई scope नहीं है. It has to be 100%. It has to, because see, this is the best years of your life that you are giving. Best years है. आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग होंगे, तो आज देखो सैटरडे है, आप यहाँ पे बैठ के मेरी बोरिंग बातें सुन रहे हैं, वो हौस खास पहुंच गए होंगे अभी तक, ठीक है, फिर शाम तक पहुंच जाएंगे. तो यू हैव टेकन दिस, है ना, दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मेनी ऑफ यू मस्ट हैव लेफ्ट योर गुड पेइंग जॉब्स टू कम एंड प्रिपेयर, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही ना. तो मतलब इनफैक्ट मेरी एक बहुत खराब आदत है शायरी बोलने की क्लास में, आपको सफ़र करना पड़ेगा. एक शायरा है, पाकिस्तान की शायरा थी, सिविल सर्वेंट थी, उनका नाम था परवीन शाकिर. तो परवीन शाकिर कहती हैं कि उम्र में गुजरेगी जो उम्र बड़े, सॉरी, कैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, कैद में गुजरेगी जो उम्र बड़े काम की थी, पर मैं क्या करती जंजीर तेरे नाम की थी. ताली बजाओ. तो आपके पास जो जंजीर है ना, ये यूपीएससी का है. इफ इट वर्क्स आउट देन यू हैव एग्जाम्पल विश्वजीत, ठीक है, ही इज रैंक 67 दिस ईयर, ठीक है. एंड इफ यू वर्क हार्ड इट विल वर्क आउट, ठीक है. और देखो एक लास्ट में आई जस्ट लीव यू विद दिस थॉट, इस एग्जाम में द प्लेस यू आर, जहां पे हो, डरना नहीं, रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है. यहां से दो ही रास्ते हैं, आइदर यू विल बी सक्सेसफुल. सक्सेस का स्पेलिंग क्या है? हाँ ठीक है, तुम तो सक्सेस बैच में ही हो ना, ठीक है. सो आइदर यू विल बी सक्सेसफुल
और बहुत क्रूड वर्ड है फेलियर। दुनिया ये नहीं सुनती है कि हमने तो बहुत दिन रात पढ़ा, नहीं, एक चीज, पास फेल। सो आइदर सक्सेस और फेलियर, बाइनरीज है। बट अब ये हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, क्या पूछना। इसमें भी दो सिनेरियोज आते हैं, फेलियर विथ गिल्ट, फेलियर विदाउट गिल्ट। हमने सब कुछ दिया, नॉट एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, हमने सब कुछ दिया, आई गिव 100%, नहीं हो पाया। अब ऐसा प्रीलिम्स का पेपर आ जाएगा सब कुछ करते हुए, फिर क्या ही करोगे। तो फेलियर विदाउट गिल्ट कि हमने, आई वर्कड हार्ड, ठीक है, नॉट एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। आप सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट गॉड्स, राइट। फेलियर विथ गिल्ट, एंड दिस योर हार्ट विल टेल, हर दिन बताता है कि नहीं आज पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, आज मैं और बेटर कर सकता था। इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, योर हार्ट विल टेल कि क्या आपने 100% दिया है कि नहीं दिया। दिस इज द वर्स्ट प्लेस टू बी, दिस इज द वर्स्ट प्लेस। दिस इटसेल्फ, ये तो ठीक ठाक, आपने जितना करना था कर दिया, बस दैट्स इट। एंड इट पेज यू एट सम पॉइंट और द अदर, ऐसा नहीं है, इट पेज यू, इट गिव्स यू रिटर्न एट सम पॉइंट ऑफ द अदर, ठीक है। बट दिस इज अ डिफरेंट थिंग। कोई तो दिन आएगा जब ओआरएन का रूम खाली करोगे, ठीक है, लकड़ी की अलमारी हटानी पड़ेगी, चलिए कोई तो ऐसा दिन आएगा, या घर थोड़ी बनाएंगे ना। दैट डे शुड नॉट बी, आइदर इट शुड बी दिस और दिस, ऑनेस्टली सी, दोनों में से रहो। बट दिस इज द वर्स्ट प्लेस टू बी। दैट्स वाई सिंस टुडे इज द ओरिएंटेशन लेक्चर, आई एम सेइंग बी विथ मी 100%। जब तक इस तैयारी में रहो, इतने रहो कि शाम को सोने जाओ तो फिर एकदम थक के सो जाओ, मतलब ऐसा ऐसा लगने लगे ना कि दिन में 24 घंटे ही क्यों है। ये आना चाहिए दिमाग में कि यदि ऐसा लग रहा है कि टाइम कट ही नहीं रहा है, कि काटे नहीं कटते दिन, ये रात वाली बात है, तो जब टाइम नहीं कट रहा है तो इसका मतलब यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। क्योंकि यूपीएससी इतना पढ़ने के लिए आपको समय देता है, मतलब इतना सिलेबस देता है ना, कि आप कह ही नहीं सकते कि टाइम नहीं कट रहा है। आपका ऐसा लगने लगेगा कि सुबह से शाम कैसे, इतना जल्दी शाम कैसे हो गया। सो एंजॉय दिस प्रोसेस, बी 100% in this process. It is going to be exciting one. And yes, we have Vishwajit Gupta with us. He's ranked 67 this year, and his marks in political science is 282, which is one of the highest this year. He has seen exam length and breadth. He himself made a jump from 230 to 282, which was a substantial jump of 52 marks. And as far as the academic background is concerned, economic social background is concerned, he's like just one amongst us. एक होता है ना कि, because his example will tell you that how it's hard work it can be done. And he's very very real in his suggestions, very very real in his suggestions. मैं unnecessary बहुत सारी चीजें नहीं टॉपर्स की तरफ बता के कि फिर आपको लगने लगे कि हम ऐसा करेंगे. He's very very real in his suggestions, and with this rank of course he is going to get IAS, his preferred service, and most probably he should get the preferred cadre also. But ठीक है, cadre prefers नहीं मिलता है, ये तो हमेशा चलते रहता है ना. सिलेक्शन के बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू, सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद फिर सर्विस, सर्विस के बाद कैडर, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो विश्वजीत, जस्ट दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर जर्नी फॉर PSIR. यू हैव सीन इट फॉर क्वाइट सम टाइम. ठीक है, विश्वजीत ने एक चीज़ बताई कि नहीं, नॉट यू, आई थिंक इट वॉज किरण सेड दैट, किरण कामते, रैंक 53, दैट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन आई वॉज एन अथीस्ट, बट विथ प्रिपरेशन आई स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड. ठीक है, विश्वजीत हैज बीन अ बिलीवर ऑफ गॉड, राइट. आई थिंक सिलेक्शन के बाद 3-4 बार तो ये वैष्णो देवी जा चुके हैं. ठीक है, सो जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस, जस्ट दैट व्हाट शुड बी देयर ओरिएंटेशन, व्हाट इज गोइंग टू बी योर सजेशन, 2-3 सजेशन जो इनको दिमाग में रखना चाहिए. अगेन कहा जाता है कि इफ यू वांट टू नो द रोड अहेड, आस्क फ्रॉम दोज हु आर रिटर्निंग. सो आई विल टेल यू व्हाट ऑट टू बी, ही विल टेल यू व्हाट एक्चुअली वर्क्स. ठीक है, एंड जस्ट अभी it's been like 2 months only when the results came, so he's a mentor here till he goes to Labasna, which is training starting from 24th of August, right? So till he goes there, he will be here. So any help you require, you can take it. So any piece of advice, Vishwajit? Hello everyone, good afternoon से evening हो गया, and just like you, I was sitting on the back of the class और सर सिलेबस डिस्कस कर रहे थे सारा, एंड ही वाज टेलिंग कि इसमें ये है, इसमें ये है,
मेंस पूरा बता रहे थे और पूरा नॉस्टैल्जिया एकदम हिट कर रहा था कि हाँ एक टाइम पे बैठ के इस टाइप से सिलेबस देखा था, इस टाइप से मेंस देखा था. So basic introduction about me. My name is Vishwajit Gupta. I have given 4 attempts in this examination. First attempt, couldn't clear prelims. Second attempt, gave interview, but could not find my name in the list. Third attempt, again could not clear prelims. And fourth attempt, fortunately, I've got a good rank. So it is a complete roller coaster. Ups भी, downs भी, सब कुछ. And coming from a very humble background, I did not have much knowledge. My parents did not have much knowledge about this exam, not the intricacies of this exam. So I had to figure out a lot of things on my own. उसमें जो गाइडेंस मिला, जो पीयर सपोर्ट मिला, जो सीनियर्स का, टीचर्स का गाइडेंस मिला, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड टू अदर्स ऑल्सो. दैट उस टाइम पर अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें जो बता देता या जिसने हमें बताई, वो आई एम ट्राइंग टू पास इट ऑन टू अदर्स. So that is my basic approach. This examination demands a lot of things. सर ने आपको बता दिया. And once Ira Singhal ma'am said that this exam finishes you हर तरीके से. Not to demoralize you or anything, but it is not finishing you per se. It is, आपने कभी बटरफ्लाई देखा है जब वो कुकून से बाहर आती है? So that is the pressure that you are going to handle. That after this journey, after you end this journey, you will become a different sort of individual which will be actually fit to serve the nation in the requisite manner. So that is the pressure and that is the manner this examination has been designed, कि आपको उतना pressure handle करने की capacity आ जाती है. You cannot go on your whims and fancies कि आज अगर पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, कल आज का और कल का, दोनों दिन का कल पढ़ लेंगे. आप जब आप एक डिस्ट्रिक्ट में होगे या जब जिस भी आप सर्विस में होगे, आप वहां पर ये नहीं बोल सकते ना कि आज किसी की प्रॉब्लम्स हैं, अब आज कल देख लेंगे. बिकॉज इट माइट बी अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फॉर समवन एल्स. आपको लगता होगा कि यार मैंने तो 8 घंटे का सोचा था, 8 घंटे पढ़ लिया, किताब साइड में, मुझे क्या मतलब. यू कैन नॉट हैव दैट एटीट्यूड इन सिविल सर्विसेज. इवन आफ्टर यू पुट इन 8 hours, यू हैव टू पुट इन 1 or 2 extra hours जस्ट इन केस अगर किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो. So that sort of mindset happens when you prepare this exam. This examination pattern is such, मतलब वो बनाया ही इस तरीके से गया है एग्जाम कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हो. तो ये तो बेकार की बातें हैं. ये सब गाथा है. वन थिंग दैट सर वाज मेंशनिंग अबाउट सक्सेस एंड फेलियर, जो अभी लास्ट में सर बता रहे थे. नो, सर ने जो कुछ भी बोला बहुत सही है. व्हेन आई कुड नॉट फाइंड माई सेल्फ समवेयर after my third attempt, at that point of time, us juncture par you stand, that you have given 3 to 4 years of your life, you have not tasted success, you are still at this, मतलब ऊपर सक्सेस नीचे फेलियर जो सर ने बनाया था, you are still at a failure stage. बट वो जो डाइवर्जन था फेलियर के बाद वाला, I did not want to be on the wrong end of it, कि सक्सेस, सॉरी, फेलियर with guilt, that I did not want. And the other thing was failure without guilt. I was okay with that. That even if I couldn't clear this examination, I should not have a guilt. And that is what my father said to me, that you give your best. He's a teacher. He's a government teacher. And he said, you give your best and don't worry about the rest. If you have given your best and your heart tells you that you have done it, then I will not say anything to you. You will do definitely something good in your life. That is the kind of preparation this examination demands. एक बार आपने अच्छे से मेहनत कर ली, एक बार आपने इतनी सारी चीज़ें समझ ली, जीएस इतना सारा पढ़ लिया, आपने ऑप्शनल एक पढ़ लिया, आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता कर लिया, न्यूज़पेपर पता है, दुनिया में क्या हो रहा पता है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा पता है, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब कुछ आपको पता है. यू विल गो एनीवेयर इन योर लाइफ, यू विल डू गुड, दैट इज़ फॉर श्योर. और अगर आपने विदाउट गिल्ट वाला प्रिपरेशन किया है, देन यू विल डेफिनेटली डू गुड इन लाइफ. फिर को तो आपको इतना पॉलिश कर देता है ना एग्जाम कि आप एक बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हो. तो दैट इज द जनरल अप्रोच रिगार्डिंग प्रिपरेशन. माय जनरल फिलॉसफी वाज वन डे एट अ टाइम. ना ज़्यादा आगे का सोचना, ना ज़्यादा पीछे का सोचना. आज का दिन, आज शाम को
ख़त्म होने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव माय बेस्ट। दैट वाज बहुत कुछ देखा, अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद लास्ट में ये फिलॉसफी थी, वन डे एट अ टाइम। आज का दिन अगर ठीक से यूटिलाइज हो गया, आई विल गो टू स्लीप हैप्पी। कल की प्लानिंग आज रात को होगी, कल सुबह बैठ के सिर्फ सो के उठना है और पढ़ने बैठना है, दैट्स इट। एंड a lot of things that you will do in your preparation, a lot of things that you will miss out on your preparation, I'll only say ki after coming out of this journey after 4.5 years, when I look back, I do not have any guilt कि ये मिस आउट कर दिया, वो मिस आउट कर दिया, because today when I sit with my UPSC friends and my non UPSC friends, I have a different perspective about things, and that sets me apart. That if I'm able to say two things that they do not think at that moment, कोई भी ऐसा डिस्कशन चल रहा है, सो फॉर वन डे वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि आज आज आसमान में बादल बहुत अच्छे हैं, दिस इज अ जेन्युइन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, कुछ झूठ नहीं है। फोर ऑफ अस वर सिटिंग देयर एंड वी आर लाइक आज आसमान में बादल बहुत अच्छे हैं, एंड टू ऑफ अस वर यूपीएससी, बोथ ऑफ अस क्लियर्ड, टू ऑफ अस वर यूपीएससी पीपल, एंड वी वर इमीडिएटली लाइक कि हाँ यार सिरस क्लाउड्स है कि क्यूमुलस क्लाउड्स है। वी डोंट नो व्हाट टू डू ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, बट उस टाइम पे उस जगह पर बैठकर हमारे दिमाग में आता कि सिरस है या क्यूमुलस है, एंड वी आर लाइक कि नहीं नहीं हाइट ज़्यादा है, वैसा लुक है, दिस मस्ट बी सिरस क्लाउड्स। तो दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कम्स, यू नो, इट सीप्स इन, आपकी पर्सनैलिटी वैसे बन जाती है। यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड एंड ही वाज लाइक कि यार मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तुम इतना कम क्यों बोल रहे हो? ऐसी ऐसा ही थे या प्रिपरेशन में बन गए? एंड आई टोल्ड हिम कि नहीं भाई अभी जो है सो ये है, पहले से थोड़ा था, प्रिपरेशन ने बना दिया, एंड आई गेस इट इज़ द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, डिमांड ऑफ द जॉब कि आपको ऐसा बनना है। तो these are not pep talks, I'm just sharing these things because a few months back I was sitting in your place, and it's always, you know, fancy to stand on the other side, but I still believe that I belong there only. तभी पीछे बैठ के I was still listening to the class, and these are just general pep talks just to lighten the mood. आप लोग बहुत सीरियस हो गए थे यूपीएससी प्रेप को लेकर, पीएसआईआर के लिए you just do the basic things right. Okay, we'll come to the point. You are doing your foundation, बेस्ट विशेस टू योर फाउंडेशन। आप अच्छे से पढ़िए, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जो भी आपको नोट्स चाहिए, एक्स्ट्रा पढ़ना है, कहीं से कुछ नया गैदर करना है, वो सारी चीज़ें करने का टाइम अभी है। धीरे धीरे ये सब कंप्लीट होता जाएगा, आपको दिमाग में चीज़ें कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएंगी, यू विल बी एबल टू राइट सम आंसर्स, गेट देम एवेल्युएटेड, इम्प्रूव अपॉन देम, गो सी टॉपर्स कॉपीज, टॉपर्स नोट्स, ब्लॉग्स, दे विल हेल्प यू अ लॉट कि आपको किस डायरेक्शन में, किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हेल्प होंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, if you need anything, sir is always here, and as far as I'm here, as long as I'm here, always available at your service. So best wishes to your foundation, and thank you so much for having me here. I'll just conclude this session for you. Most of the things have been said. Okay. Just can have sir. The program details I have already explained. This was the number I was talking about. Okay, this is the official annual report of UPSC. You can see that number of aspirants. This line shows number of aspirants that have applied in UPSC from 1950 till the last report which was published. Of course, it is of the total. It is the total number of applications that comes to UPSC. यूपीएससी केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं लेती, टोटल 14 एग्जाम लेती है, 10 सिविल साइट, 4 डिफेंस साइट्स के, ये सारे एग्जाम्स को कंबाइन करके है। ऑफ कोर्स हम यूपीएससी बोलते हैं तो मोस्टली जैसे इसमें 45 लाख फॉर्म्स हैं तो उसमें 10 लाख यूपीएससी के ही है ना। तो यू हैव सीन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, इट हैज बीन राइजिंग, एंड इफ यू सी द trend in the number of vacancies that UPSC is recruiting for, then there was clear increase, and from here it was a decline. Why? 1991, you very well know, the economic reforms, the LPG reforms, गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें ज़रूरत नहीं है नो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, एंड देयर वाज अ डिक्लाइन। इनफैक्ट उस समय इनटेक इतने कम हो गए थे कि अभी हमें लैटरल एंट्री की भी ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल एट द जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल हु कैन कम इन, एंड देयरफॉर या तो आपको नॉन आईएएस को प्रमोट करके वहाँ ले जाना पड़ेगा, और आपको लाना पड़ेगा somebody from outside the regular services. Good thing is that it is increasing. This is the right. ये मैंने बताया कि how many people apply, you know it. 50% they write the exam, and then around what 14,000 they will give mains, and then ultimately it is coming down to 900 something.
This was the graph I was talking about, the number of attempts which is taking for the candidates to qualify this exam. The green line shows final selection. ठीक है, फाइनल सिलेक्शन मैंने बताया 9% फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, एंड देन अराउंड 20% सिलेक्शन से वो थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में है, एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. रीजन मैंने बता दिया, इट्स नॉट दैट कि पीपल they were not serious here, but they were doing a lot of mistakes, maybe not rightly oriented, and therefore they realized their mistakes later on, and then they corrected on this. फिर उस बार सिलेक्शन हो गया. ठीक है, now this is the UPSC notification जो है जिसमें बताया गया है कि यूपीएससी क्या चाहती है आपसे. So if you read the notification, then it is talking about the requirement of the general studies paper. So you can clearly see UPSC says that the nature and the standard of the question in the general studies paper will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. ये सरासर झूठ है ना, ऐसा होता नहीं है. आपको लगता है कि anybody from anybody with some general awareness, what they are saying, that anybody, any well-educated person, you people are well-educated, graduate ho, any well-educated person will be able to answer them without any specialized study. Do you think it is possible? A IIT pass out in mechanical engineering, how can he differentiate between temperate cyclone and tropical cyclone? कैसे कर सकता है? हो सकता है वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हो. तो दिस इज समथिंग. या फिर हो सकता है यूपीएससी ऐसा चाहती थी कि जनरल स्टडीज का पेपर एक जनरल टाइप का रहे जिसमें कि एनी वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू राइट. बट प्रॉब्लम इज कि ये कंपटीशन है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है कि एनीबडी गेटिंग 50% उनका सिलेक्शन हो जाएगा. इफ समबडी इज राइटिंग बेटर आंसर, उसको मार्क्स बेटर मिलेगा. You are writing India as a federal country. Somebody is writing that Article 1 declares India as a union of states, but Supreme Court in SR Bommai has declared India federalism as the basic structure. इससे better marks मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा. So that's why maybe that was the expectation of UPSC. But the kind of people who are coming into this exam and the way institutes are preparing the students, वो क्या होगा कि upgrade हो जाएगा. Now, for optional paper, the scope of the syllabus for the optional subject, that is paper 6 and 7, is that it is broadly requires a knowledge level higher than the bachelor's degree and lower than the master's degree. इसमें भी ऐसा नहीं है. यू क्लियरली रिक्वायर मास्टर. बैचलर्स डिग्री आपने की है, आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में कितना ही पढ़ाई हो पाता है, नहीं हो पाता है. आप मतलब बेरली 3 साल के बाद एक समझ सकते कि हाँ, हॉब्स एक इंसान था, ठीक है, मैकियावेली नाम का भी एक इंसान था उधर, कुछ तो उसने रिलीजन की बात की थी, ठीक है. आप बस इतना बता सकते हो कि सर प्लेटो अच्छा आदमी था, सोक्रेटिस अच्छा था, मैकियावेली जो ठीक नहीं था सर मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लो. इतना ही बता पाता है स्टूडेंट. मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं कहेंगे उसको. अब उसने क्या कहा उसके आगे नहीं पता हो, ठीक है. सो क्लियरली इट रिक्वायर्स पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल के बाद का नॉलेज. देन हाउ टू मेक माय आंसर डिफरेंट. मैंने बताया कि बस GS2 का कैसा आंसर डिफरेंट होगा बता दिया. एंड हियर डोंट वरी फॉर दिस, वॉट एवर विल बी टॉट इन द क्लास, आप जितना कैप्चर करोगे और कितना आप रिप्रोड्यूस करोगे पेपर पे, वो अपने आप डिफरेंट हो जाएगा. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ऐसा डिफरेंट आंसर लिख के आऊँगा कि इवेल्युएटर ताली बजाते हुए खड़ा हो जाएगा. ऐसा कभी नहीं होगा. उसको आपसे उतनी उम्मीद भी नहीं है. ही इज जस्ट एक्सपेक्टिंग एन अबव एवरेज आंसर, दैट्स इट. आपके लिए इट इज़ अ मेक एंड ब्रेक सिचुएशन, उनके लिए थोड़ी है. इट इज़ देयर डेली गवर्नमेंट जॉब. तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि यदि वो थ्योरी ऑफ आइडिया ऑफ प्लेटो की पढ़े तो उनको एलिगेरी ऑफ केस दिखना चाहिए, सोक्रेटिस का नाम दिखना चाहिए, वर्चू इज नॉलेज दिखना चाहिए, मार्क्सिस्ट का क्रिटिसिज्म दिखना चाहिए. बस इतना दिख गया, दे विल गिव यू मार्क्स. तो आंसर अपने आप डिफरेंट हो जाते हैं. हाउ इज PSI आंसर डिफरेंट फ्रॉम GS, हमने कवर कर दिया. हाउ टू यूटिलाइज द टाइमलाइन फ्रॉम हियर, मैंने बता दिया कि फ्रॉम मिड ऑफ अगस्त आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, जनवरी तक का आपको टाइमलाइन बताया. व्हाट अदर एग्जाम्स टू टारगेट. अब इसमें जैसे स्टूडेंट्स का नॉर्मल आता है कि सर क्या स्टेट PSCs भी देने चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. माय सजेशन इज कि फर्स्ट अटेम्प्ट डोंट टारगेट. फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने क्लासेस कर रहे हैं, यू आर बेयरली एबल टू सर्वाइव फॉर UPSC. तो डोंट टारगेट एनी अदर एग्जाम. डोंट इवन इफ यू आर कंसिडरिंग फॉर मास्टर्स ऑल्सो, यदि आप ऐसी जगह से मास्टर्स करना चाहते हैं जहाँ पे मे बी द अटेंडेंस एंड ऑल विल बी मैनेज, देन तो ठीक है. अदरवाइज
it will be very difficult to do masters from a university which requires very heavy academic involvement. तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 27 के लिए जस्ट फोकस ऑन यूपीएससी. once 80% of the preparation will be done, then next, भगवान न करे जाना पड़े, बट यदि जाना पड़ता है तो आपको you can go for state PSCs and all. That is a question at a later time. But abhi, for first attempt, don't even think of anything other than this. This itself is going to be challenge. Okay. Things to keep in mind. The conclusion will be, don't tie yourself with perfectionism. कभी मत करना. Don't even think कि मैं इस topic को perfectly जान जाऊंगा. You have to survive in paper. One of the toppers said कि in UPSC we don't answer the question, we tackle the question. क्या आप कितना भी पढ़ लोगे ना, टीचर्स भी जाए ना, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. तो वी विल बी टैकलिंग द क्वेश्चन कि आपके जितना पता है कैसे इसको फ्रेम करके ला सकते हैं. अब लास्ट ईयर क्वेश्चन है रेड लिपस्टिक मूवमेंट, बहुत कम लोगों को पता था, बट इतना तो पता चला रेड लिपस्टिक है तो ये मेल राइट्स के लिए नहीं होगा, फीमेल राइट्स के लिए होगा. फेमिनिज्म के बारे में तो पता ही है. इंडिया में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला, इसका मतलब है कि दैट विल बी इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ऐसा करके हम कम से कम 2 पेज में से 1 पेज का तो आंसर हम बना लेते हैं. So this is how you tackle the question. So don't tie yourself with perfectionism. At least make a ground for yourself first. Then PYQs are the key. Optional में it is more applicable. Previous year questions are the key. तो हमेशा ध्यान में चलना है. यदि आपके पढ़े से PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं आप, that means you are on the right track. Then Parkinson law. Parkinson law पता है ना? The work expands to fill the time given to you. यानी आपको प्लेटो आप 1 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, 5 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, 5 दिन भी लग जाएगा. तो पार्किंसन लॉ सेज दैट वर्क ऑलवेज एक्सपैंड्स टू फिल द स्पेस गिवन. यदि मेरे को जाके आज कोई काम करना है, कल क्लास है, इफ आई हैव टू डू माय स्टडी, मैं करूंगा. बट इफ मेरे को लगा कल तो संडे है, छुट्टी है, मैं डेफिनेटली आज नहीं करूंगा और मेरे को उसमें 2 दिन लग जाएंगे. तो डोंट फॉल इन दिस ट्रैप. एंड दैट्स व्हाई टाइम इज इंपॉर्टेंट. मैंने कहा ना कि आपको पहले टाइम फ्रेम फिक्स करना पड़ेगा कि इस टाइम तक मेरे को ये काम कर लेना है, कम व्हाट में. अदरवाइज वो वर्क एक्सपैंड करके टाइम को फिल करते रहता है. पहले आपको लगेगा 2 दिन, फिर आप 10 दिन, फिर 15 दिन, 20 दिन, वही करते रह जाएंगे. सो डोंट फॉल इन दैट पर्टिकुलर ट्रैप. एंड ऑफ कोर्स वी प्रिपेयर फॉर द मेंस ओनली. ठीक है. So this is it for the orientation. Next class से we'll start into the sections of 1B. कोई doubt है? Clear? ठीक है. तो बस keep these things in mind and I think things will be okay. चलो, thank you.